السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امیر بادشاہ، TGT GHP UBS ملور تعلقہ بیڑگی ضلع ہاویری۔ آئیے آج ہم 7ویں جماعت کا پہلا سبق پودوں میں تغذیہ نیوٹریشن ان پلانٹس کے متعلق سے معلومات حاصل کریں۔ تمام جاندار عضویوں کے لیے غذا ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چربی، وٹامن اور معدنیات غذا کے ضروری اجزاء ترکیبی ہیں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں۔ ان کو مغذی یا تغذئی نیوٹرینٹ کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں پر متوازن خوراک یعنی بیلنسڈ ڈائٹ کے متعلق سے چارٹ دیکھ رہے ہیں۔ تمام جاندار عضویوں کو غذا کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ہمارے روزمرہ زندگی کے تمام افعال کو انجام دینے کے لیے ہمیں توانائی کی ضرورت ہے۔ وہ توانائی ہمیں غذا کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ پودے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ پودے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، یعنی اپنے آس پاس میں پائے جانے والے خام مال کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ پودے پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور معدنیات کا استعمال کر کے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ آپ تصویر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، پودے سورج کی روشنی اور مٹی سے پانی، معدنیات اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کرتے ہوئے غذا کو تیار کرتے ہیں۔ لیکن جانور جس میں انسان بھی شامل ہے ایسا نہیں کرتے۔ جانور اور انسان اپنی غذا پودوں یا ان جانوروں سے حاصل کرتے ہیں جو ان پودوں کو کھاتے ہیں۔ آپ تصویر کے اندر مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہم دودھ، گوشت کا استعمال بھی یہاں پر ان جانوروں سے کرتے ہیں۔ تغذیات ہی جاندار کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے جسموں کی پرورش اور نشو نما کریں اور اپنے جسموں کے نقصان دہ یعنی ڈیمیجڈ حصوں کی مرمت کرنے میں بھی یہ تغذیات ہماری مدد کرتے ہیں۔ غذا حاصل کرنے کا طریقہ اور جسم کے ذریعے اس غذا کا استعمال تغذیہ کہلاتا ہے، نیوٹریشن کہلاتا ہے۔ غذا حاصل کرنے کا طریقہ اور جسم کے ذریعے اس غذا کا استعمال تغذیہ کہلاتا ہے۔ تغذیہ کے جس طریقے سے عضوے سادہ اشیاء سے خود غذا بنا لیتے ہیں اس کو خود پرورشی تغذیہ آٹوٹروفک نیوٹریشن کہتے ہیں۔ اسی لیے پودوں کو خود پرور کہتے ہیں، آٹوٹروپس۔ پودے غذا تیار کرنے کے لیے اپنے آس پاس موجود خام مال کا استعمال کرتے ہیں، روشنی، پانی، مٹی اور وغیرہ کا۔ سورج سے روشنی، ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور مٹی سے معدنیات کا اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ پانی اور معدنیات ان نالیوں کے ذریعے سے پتیوں تک پہنچتے ہیں جو پائپ کی طرح جڑوں، تنوں، ٹہنیوں اور پتیوں میں بچھی رہتی۔ پانی اور معدنیات ان نالیوں کے ذریعے سے پتیوں تک پہنچتے ہیں جو پائپ کی طرح جڑوں، تنوں اور ٹہنیوں اور پتیوں میں بچھی رہتی ہیں۔ یہی نالیاں ویزلز کہلاتی ہیں۔
मगजियात के पत्तियों तक पहुंचने का एक मुस्तकिल रास्ता है। ये पत्ती का सेक्शन की तस्वीर है। पत्तियां पौधों के ग़िज़ाई कारखाने हैं। पौधों में ग़िज़ाई तालीफ का काम पत्तियों में होता है, इसलिए सारा खाम माल वहीं पहुंचना चाहिए। पानी और मादनियात जो मिट्टी में मौजूद होते हैं उनको पौधों की जड़ें जज्ब करके पत्तियों तक इन नालियों के ज़रिए पहुंचाते हैं। पत्तियों की सतह पर जो बारीक मसामात होते हैं इनके ज़रिए से पत्तियों को हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हो जाती है। ये मसामात मुहाफिज खुलियों यानी गार्ड सेल्स से घिरे होते हैं। इन मसामात को स्टोमेटा कहा जाता है। आप तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं, गार्ड सेल्स यानी मुहाफिज खुलिये, स्टोमा का मुंह क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में एक सब्ज पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी मदद से पत्तियां सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल कर लेती हैं। इस तवानाई का इस्तेमाल पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ग़िज़ा को तैयार करने में किया जाता है। ऑक्सीजन भी, जो कि तमाम जानदार अज़ियों के लिए लाजमी है, ज़ियाई तालीफ के अमल के दौरान ही पैदा होती है। अगर ज़ियाई तालीफ न होगी तो ज़मीन पर ज़िंदगी नामुमकिन है। ज़ियाई तालीफ के अमल के दौरान पत्तियों के वो खुलिये जिनमें क्लोरोफिल होता है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। इस अमल को एक मसावात के ज़रिए इस तरीके से वाज़ह किया जा सकता है। आप तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में पौधे इस्तेमाल करते हुए कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। सब्ज पौधे सूरज की रोशनी में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ग़िज़ा तैयार करने के अमल को ज़ियाई तालीफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, सब्ज पौधे यानी जिन पौधों में क्लोरोफिल मौजूद हो, और यहाँ पर निहायत ही ज़रूरी चीज़ सूरज की रोशनी भी है। आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, ज़ियाई तालीफ का अमल पत्तों में होता है। चूंकि पत्तियों में ग़िज़ा की तालीफ सूरज की रोशनी में वाक़या होती है, इसलिए इस अमल को ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो यानी रोशनी, जिसे ज़िया कहा जाता है। सिंथेसिस यानी तरकीब व इत्तेहाद को कहते हैं। आइए अब हम स्टार्च की जांच करते हैं। एक पत्ती के कुछ हिस्से को काले रंग के कागज से ढके रखें, जैसा कि तस्वीर में बताया जा रहा है। इस अमल को हम दो गमलों को अलग अलग लेकर भी कर सकते हैं, दो पौधों को, या एक ही गमले के पौधे के साथ भी इस अमल को करते हुए हम स्टार्च की जांच को कर सकते हैं। एक पत्ती के कुछ हिस्से को काले रंग के कागज से ढके रखें। 2 या 3 दिन बाद इस पत्ती को काट कर अलहदा करते हुए उस काले कागज को निकाल दें। फिर चंद मिनट के लिए उस पत्ती को गर्म पानी में रखिए। ठीक उसी तरह अल्कोहल में थोड़ी देर रखिए ताकि वो क्लोरोफिल अलग होने की वजह से अपने पत्ती का रंग सफ़ेद रंग में तब्दील हो। फिर उस पत्ती को पानी में धोइए।
उस पर आयोडीन का महलूल के चंद खतरे टिपकाइए तो आप गौर करेंगे पत्ती के जिस हिस्से पर काले रंग का पेपर या कागज लपेटा गया था वो हिस्से का रंग में तब्दीली नहीं आएगी, बाकी हिस्से का रंग नीला काला होगा। इससे हमें पता चलता है कि खुला हिस्सा में वो तमाम अशिया मौजूद हैं जो ज़ियाई तालीफ के लिए ज़रूरी हैं, यानी जो ग़िज़ा की तैयारी के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन काले कागज़ से ढका हुआ हिस्सा ग़िज़ा को तैयार नहीं कर सकता। इससे हमें पता चलता है कि ग़िज़ा की तैयारी के लिए सूरज की रोशनी निहायत ही ज़रूरी है। पत्ती का वो हिस्सा जिस पर नीला काला रंग हम देख सकते हैं स्टार्च की मौजूदगी को जाहिर करता है, और नीला काला रंग में तब्दील ना होने वाला हिस्सा स्टार्च की गैर मौजूदगी को जाहिर करता है। इससे हमें पता चलता है कि ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी निहायत ही ज़रूरी है। जो पत्तियां हरी नहीं हैं इनमें भी क्लोरोफिल होता है। लाल, भूरे और दीगर पिगमेंट का हरे रंग पर खौल सा चढ़ जाता है। इन पत्तियों में भी ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस होती है। आप देख सकते हैं रंग बिरंगे पत्तियों को। आपने तालाबों या ठहरे हुए पानी में हरे हरे थके देखे होंगे जिनको काई या अलगा कहा जाता है। काई सब्ज रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। ये भी ज़ियाई तालीफ के ज़रिए अपनी ग़िज़ा तैयार कर सकते हैं। तो हमने इस सबक में अब तक ज़ियाई तालीफ के मुताल्लिक़ से तफसील से मालूमात हासिल की, साथ साथ तग़ज़िया, खुद परवर और क्लोरोफिल के मुताल्लिक़ से भी मालूमात हासिल किए हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में पौधों में तग़ज़िये के दूसरे तरीक़े के मुताल्लिक़ तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।